Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 2nd of February 2022, Wednesday. Motivation of the day is the hard days are what makes you stronger. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में जितनी भी न्यूज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस हैं दैट आर रिलेटेड टू द बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, तो जितनी भी न्यूज़ हम आज कवर कर रहे हैं, चाहे वो मेजर न्यूज़ हो चाहे वो माइनर न्यूज़ हो, दैट ऑल are related to the budget session of yesterday. So let's have the glimpse of news that what we are going to discuss in today's analysis. First, we will discuss about the budget and infrastructure expenditure that government has targeted for this current financial year. Apart from it, we will also discuss how government has actually levied the new tax bracket on digital assets and what experts are actually deciphering from this tax slab or tax norms on cryptocurrencies specifically. Apart from it, we will discuss the ITR filing glitches and how government has basically targeted these error into this year budget. Later on, we will discuss the tax reliefs related to cooperative societies and startups. So, few new provisions government has incorporated into this year budget, where cooperative societies as well as the startups has been given certain tax concession, certain tax relief. So, we will discuss about that tax relief also. Apart from all these major news, we will discuss some other important news clips that are related to the fiscal correction path, non-tax revenue, health expenditure, as well as the state finance. So this is going to be a very comprehensive coverage of budget financial year 23. So let's start with article number 1 that is given on page number 1 of Business Standard. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर न्यूज़ को कैटेगराइज किया है जैसे कि बिजनेस स्टैंडर्ड ने आज पब्लिश किया है. बिजनेस स्टैंडर्ड ने सेक्टर वाइज न्यूज़ को कैटेगराइज किया है. दैट इज न्यूज़ रिलेटेड टू बजट एंड इकोनॉमी, न्यूज़ रिलेटेड टू बजट एंड इंडिविजुअल, न्यूज़ रिलेटेड टू बजट एंड टैक्सेशन, न्यूज़ रिलेटेड टू बजट एंड हेल्थ केयर सेक्टर. तो उसी तरीके से मैंने भी कैटेगराइज किया जिससे कि हम ज़्यादा न्यूज़ कवर कर सकें कम टाइम में. तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है. बजट बेट्स बिग ऑन पब्लिक इंफ्रा. जैसा कि हमने लास्ट डिस्कशन के सेशंस में डिस्कस भी किया था कि इस बार का जो बजट है उसमें गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वहाँ पर अपना एक्सपेंडिचर एलोकेशन इंक्रीज करेगी. और इस बार का बजट जो आया है वो प्राइमरली इसी पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर पर फोकस किया हुआ है. तो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ शॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट that government has presented in order to rebound or recover the economy from the pandemic. So while presenting the union budget, our finance minister stressed the overall sharp rebound and recovery of the Indian economy from the pandemic since last 2 years. और इस बार के बजट में भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिख रही. अगर बात करें बजट ने जो फोरकास्टिंग करी है इंडिया की जीडीपी के बारे में, तो एज पर द बजट डॉक्यूमेंट द नॉमिनल ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 वुड बी अराउंड 11.1%. So in spite of the global inflationary environment and economic survey prediction for the real growth above 8%, the government is not very optimistic about the nominal GDP growth. Student minded, this particular 11.1% is the nominal GDP growth. Whatever we have discussed about the GDP numbers of Indian economy till now, that was the real GDP number. अब जो डिस्कस करते हैं 7 से 8% का जो प्रोजेक्शन आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने, एसबीआई ने, आरबीआई ने दिया है, दैट इज़ एक्चुअली रियल जीडीपी. एंड हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉमिनल जीडीपी. एंड आई होप दैट यू ऑल माइट बी नोइंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और रियल जीडीपी ग्रोथ. तो इस बार के बजट डॉक्यूमेंट में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 11.1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का एंटिसिपेशन किया है. और अगर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट देखा जाए तो इस बार 6.9% का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने सेट किया है.
6.4% का फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने सेट किया है। पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट रहा यानी फाइनेंशियल ईयर 22 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था वो अप्रॉक्सीमेटली 6.8% का था और ये टारगेट भी गवर्नमेंट नहीं अचीव कर पाई एज पर द रिवाइज एस्टिमेट्स। द फिस्कल डेफिसिट for financial year 22 was actually 6.9% ऑफ जीडीपी और इसी को देखते हुए इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं रखा है, 6.4% का टारगेट रखा है। हालांकि फॉर अपकमिंग 5 to 6 ईयर यानी 2026 तक गवर्नमेंट इस फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके 4.5% तक लाने का टारगेट रखती है एज पर द बजट document. Thus, the fiscal consolidation glide path will have to steepen considerably. तो ये तो नॉमिनल जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रहा गवर्नमेंट ने जस्ट सेट किया है फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर अपकमिंग ईयर्स. And if we talk about the interest payment of government, तो financial year 23 में जो interest payment है ऐसा anticipate किया जाता है is going to be increase 16% over the previous year budget estimates and extraordinary 38% since financial year 21. So they now comprise approximately 23.8% of total expenditure up from 19.3% of financial year 23. इसके अलावा इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने जो अपनी डिपेंडेंसी है स्मॉल सेविंग्स फर्म्स फंड्स पे उस पे थोड़ा सा रिड्यूस करी है. एक्सपेक्टेड नेट मार्केट बोरोइंग ऑफ 11.6 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, अ शार्प राइज बाय 0.87 ट्रिलियन. तो इस बार गवर्नमेंट ने जो स्मॉल सेविंग फंड्स हैं उनसे बोरोइंग करने की वजह मार्केट से ह्यूज बोरोइंग करने का डिसीजन लिया है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 11.6 ट्रिलियन की बोरोइंग का डिसीजन है गवर्नमेंट जो कर सकती है आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इन ऑर्डर टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस. क्योंकि जितना रिवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर हैं वो मीट आउट नहीं होंगे एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि इस बार 11.6 ट्रिलियन का बोरोइंग गवर्नमेंट कर सकती है. नेट मार्केट बोरोइंग की बात हो रही है यहाँ पर. और जैसा एंटिसिपेट किया था बॉन्ड मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ने या एक्सपर्ट्स ने उससे कई गुना ज़्यादा है ये बोरोइंग का नंबर एंड बिकॉज ऑफ दिस द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एक्चुअली अंडर कंसर्न. वाई? बिकॉज दिस इज हायर देन एक्सपेक्टेड बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड एब्सेंस ऑफ एनी टैक्स रिफॉर्म डिजाइन टू एड the inclusion of Indian government bonds in the global indices. और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का कोई टैक्स रिफॉर्म नहीं लाया है. किस फील्ड में? फॉर द लिस्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनटू ग्लोबल इंडाइसेस जिससे कि थोड़ा सा जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ पर लिक्विडिटी इंश्योर हो. द यील्ड ऑफ द बेंचमार्क 10-year बॉन्ड रोज 17 बेसिस पॉइंट. इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के बाद से कि गवर्नमेंट 11.6 ट्रिलियन की बोरोइंग करेगी तो जो 10 साल के जो बॉन्ड है जो इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनका जो यील्ड है वो 6.85% तक पहुंच गया है. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी टैक्स रिफॉर्म टू एड द इंक्लूजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनटू ग्लोबल इंडाइसेस एंड higher than expected borrowing by government is actually distorting the bond market again, and bond market participants are really concerned over this number of borrowing by government. And this is the capital expenditure trend of Modi Sarkar or infrastructure, because this budget has focused or have given a lot of emphasis to the infrastructure spending in order to increase the employment, in order to increase the income in order to increase the demand and revive the economic activity. And this is the trend of करंट गवर्नमेंट. 2014 में गवर्नमेंट आई थी, इसके बाद से अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एक्सपेंडिचर है वो लीनियर फॉर्मेट में इंक्रीज हो रहा है. एंड डेफिनेटली किसी भी कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर द इकॉनमी. और पिछले कुछ सालों से जो गवर्नमेंट जिस तरह से एलोकेशन कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, वो ₹10 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर चुका है. एंड दीज आर द नंबर्स दैट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड फॉर दिस
फाइनेंशियल ईयर 6.4% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट, पिछली बार का टारगेट 6.8% का था, आप याद रखेंगे। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 11.1%, एज आई हैव डिस्कस। 38% इंक्रीज इन द इंटरेस्ट पेमेंट सिंस फाइनेंशियल ईयर 23। अपार्ट फ्रॉम इट 68 किलोमीटर पर डे पेस ऑफ रूट बिल्डिंग to increase the infrastructure expenditure for reviving the economy through employment generation, income increase, and demand generation. And after this budget, this is the trend that market has represented. Approximately 1.5 to 1.89% का इंक्रीज देखने को मिला BSE सेंसेक्स और निफ्टी के इंडाइसेस में। जो बेस्ट सेक्टोरल इंडाइसेस रहे, मेटल, कैपिटल गुड, एफएमसीजी, हेल्थ केयर एंड रियलिटी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर बात करें ऑयल, गैस, ऑटो, एनर्जी, तो इन सब के जो स्टॉक्स थे वो डाउन हुए आफ्टर दिस बजट presentation. Apart from it, one of the very important decision, one of the very important point that government has actually considered into this year budget is taxing the digital assets. So relief for crypto investors as FM users in tax norm. Until now, millions of investors in digital and virtual assets, more specifically cryptocurrencies and non-fungible tokens NFTs, is in the country worried. Now there's a certain relief. It's relief in terms of the tax calculation, in terms of the misconception. So until now, millions of investors in digital and virtual currencies in the country worried they could be hauled by any time by the tax department for filing their income tax returns vis-a-vis assets class incorrectly. But now, finally, our finance ministry or our finance minister has provided some clarity on how they are now being taxed. So FM has imposed approximately 30% tax, 30% का टैक्स इम्पोज किया है फ्रॉम एनी इनकम दैट अराइज आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ वर्चुअल एंड डिजिटल असेट्स। तो अगर आपके अपने किसी भी तरह के डिजिटल असेट्स को, वर्चुअल असेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को सेल करते हैं और उससे किसी भी तरह की इनकम जनरेट होती है तो उस पर 30% का टैक्स अट्रैक्ट होगा। तो हाँ, ये एक नंबर ज़्यादा है बट एटलीस्ट इट प्रोवाइड सम क्लैरिटी, क्योंकि अभी तक जो क्रिप्टो होल्डर्स थे या वर्चुअल डिजिटल असेट्स के होल्डर्स थे, दे वर एक्चुअली ऑन वरीड कब इनकम टैक्स उनके ऊपर छापा डाल दे, उनको नोटिस दे दे कि वो अपने टैक्सेशन उन्होंने अपने टैक्स सबमिट नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी थी डिजिटल असेट्स को लेकर के। सो फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ सर्टनिटी या कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड करी है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, कई जगह से एक्सपर्ट टॉक शुरू हो गई कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल असेट्स या वर्चुअल असेट्स को लीगलाइज कर रही है, लेजिटिमेट कर रही है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो बिल आना था वो अभी तक नहीं आया है। और उस क्रिप्टो बिल के बिना इस बात को कहना सही नहीं होगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया गया है कि नहीं, क्योंकि जो बिल प्रपोज था उसमें 10 साल की जेल थी फॉर प्रोफेशन माइनिंग, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एज एन असेट। और इसके बाद से ये एंटिसिपेशन किए जा रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन हो जाएगी, स्पेशली जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो बैन रहेगी। लेकिन 30% के टैक्स के बाद कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी जा रही है जो असेट होल्डर्स हैं उनके पास, कि फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है अगर टैक्स ले रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट इज़ लीगलाइजिंग। बट इस पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और इवन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो ये ना सोचें कि अगर डिजिटल असेट्स या क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लग रहा है तो इट इज़ स्टिल लीगलाइज। नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल असेट्स या वर्चुअल करेंसी के मैटर को हम सेपरेटली डील करेंगे इन अ पर्टिकुलर बिल दैट गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली गोइंग टू प्रेजेंट वेरी सून, जहाँ पर हम ये डिसाइड करेंगे वेदर क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी और एनी सॉर्ट ऑफ वर्चुअल असेट इज़ लीगल और नॉट। सो क्लियर कर दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर लीगलाइजिंग द
private cryptocurrency. We are not providing any sort of legitimacy as of now, but yes, any income that arise out of any sort of virtual assets or digital asset, वो इनकम पर 30% आपको टैक्स देना होगा. क्रिप्टो करेंसी को लीगल करना है या नहीं करना है वो हम सेपरेट बिल में डील करेंगे. तो गवर्नमेंट ने इस मिसकंसेप्शन को क्लियर कर दिया है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इकोनॉमी. पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू क्राउड इन द प्राइवेट. सो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर on Tuesday released or raised the capital expenditure by 35.4% for financial year 23. तो 7.5 ट्रिलियन का अप्रॉक्सीमेटली बजटेड एस्टिमेट रखा है गवर्नमेंट ने फॉर दिस ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर in comparison to the financial year 22 budgeted expenditure. तो पिछले साल के बजटेड एक्सपेंडिचर से 7.5 ट्रिलियन का ज़्यादा टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने इस साल के फाइनेंशियल ईयर में फॉर increasing capital expenditure. So capital expenditure in revised estimates for financial year were approximately 6.3 trillion due to the settlement of Air India debt. हालांकि अगर हम टारगेट को अगर किनारे रखकर ये देखें कि क्या गवर्नमेंट ने एक्चुअली में इतना एक्सपेंडिचर किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये टारगेट जो था वो फॉल शॉर्ट हो गया था. गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं था कि गवर्नमेंट इस टारगेट को मीट आउट कर पाए. So keeping that aside, government capital expenditure for financial year 22 is set to fall short by approximately 3,496 crore in revised estimates against the budgeted estimates. So in the first 9 months of financial year 22, capital spending by central government ministries stood to 70%. If you remember, we have discussed number of ministries and departments were actually not able to do the expenditure of more than 60% in the initial 9 months of financial year 22. Number of time we have discussed the inefficiency of the government ministries or companies इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसके बावजूद भी टैक्स कलेक्शन जो रहा है, नॉन टैक्स रिसीट्स और टैक्स रिसीट्स दोनों ही फाइनेंशियल ईयर 22 में इंक्रीज़ करी हैं, जिसकी वजह से इस बार का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो भी इंक्रीज़ कर दिया है. ऑल्दो मिनिस्ट्रीज़ या कंपनीज इतना एक्सपेंडिचर कर पाती हैं एक्चुअल ऑन ग्राउंड या नहीं, ये अदर मैटर ऑफ कंसर्न है. लेकिन इस कंसर्न को भी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है करंट ईयर के बजट में. कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशन किए स्पेशली फॉर दोज ऑब्स्टिकल कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस दैट मिनिस्ट्रीज एंड कंपनीज आर फेसिंग वाइल डूइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि सप्लाई शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल इनकी शॉर्टेज है. इसकी वजह से कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली नॉट एबल टू एग्जीक्यूट देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान. तो उन चैलेंजेस, उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एलोकेशन किया है इस साल के बजट में. तो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है, इस बार इमेंसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सीधा सीधा चाहती है कि मार्केट में मनी सप्लाई हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, डिमांड इंक्रीज हो, इकोनॉमी रिबाउंड और रिकवरी की सिचुएशन में या रिवाइवल की सिचुएशन में, और मोस्ट जो इंडिकेटर्स हैं उनको प्री पैंडेमिक तक तो एटलीस्ट लाया ही जाए. सो दिस इज द फ्यू infographics about the government expenditure and how current year budget is actually focusing on it. So this is the size of budget that reduced relative to the GDP as per the recent number, and this is the government fiscal consolidation path, how government is actually maintaining the revenue deficit as well as the fiscal deficit. So 21 यानी जब पैंडेमिक की पहली वेव आई थी तो उस समय गवर्नमेंट ने एक्चुअली 9.2% का फिस्कल डेफिसिट रिकॉर्ड किया था, जो कि पिछले सालों से गवर्नमेंट रिड्यूस करते हुए आ रही है. तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अडॉप्ट कर रही है. अपार्ट फ्रॉम इट, दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट सिंस फाइनेंशियल ईयर 17 एंड वी कैन सी इट इज इंक्रीजिंग इन अ लीनियर फॉर्मेट एज वेल. तो फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कर रही है, बट सिंस लास्ट couple of years the capital expenditure is increasing, as I discussed in the previous graph as well. And this is the health budget is the expenditure
So over the period of time, we can easily see the expenditure on health is being stagnant. और इस बार के बजट में भी गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़े promises या बहुत कोई important या significant outlay नहीं दिया है हेल्थ केयर सेक्टर को, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. And this is the interest burden that is growing year by year instead of the fiscal consolidation path that government is adopting. And this is the direct tax collection. It means income tax and corporate tax collection, जो कि लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था. हमने डिस्कस भी किया फाइनेंशियल ईयर 22 में टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है और इसी के लिए गवर्नमेंट को इस बार थोड़ा सा फिजिकल स्पेस मिला है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का. एंड दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. ये भी इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो नॉट इन अ वेरी equal format just like direct tax collection, but yes, the indirect tax collection is also increasing and that indicates a recovery of the economy. And this is the dividend profit scenario and the disinvestment that government has gone into last couple of years. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू बजट एंड इंडिविजुअल, हाउ दिस ईयर बजट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द इंडिविजुअल लाइफ. तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है इसमें. रीफाइल ITR विद इन 2 years टू फिक्स एरर्स. तो इंडिविजुअल के जो टैक्सेशन के स्लैब्स थे उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, या हम भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सम रिलीफ इन बजट इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन द टैक्स स्लैब्स और हाइक इन द डिडक्शंस अंडर ATC, ATD और सेक्शन 24. तो इन तीनों सेक्शंस में हम कह सकते हैं जो रिलीफ मिलता है इंडिविजुअल को, उसमें भी इंक्रीज एंटिसिपेट किया जा रहा था. इंडिविजुअल टैक्स पेयर से सोच रहे थे कि शायद टैक्स स्लैब्स रिवाइज हो इन ऑर्डर टू हैव मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. इवन एज नन ऑफ दोज एक्सपेक्टेशन हैव मेटेरियलाइज. तो गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्स स्लैब में चेंज नहीं किया है. ATC, ATD और सेक्शन 24 के अंदर जितने भी जो एग्जम्पशंस थे, डिडक्शंस थे, उनमें भी कोई उनकी लिमिट भी कोई इंक्रीज नहीं करी है. बट येस, देयर आर सर्टन अदर बेनिफिट्स दैट गवर्नमेंट हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड इनटू दिस ईयर बजट. पहला, file updated tax return. The income tax department will introduce the new update returns which expected to help those taxpayers who have committed the mistake in their previous year's filing. तो उनको दूसरी बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि they can correct or they can rectify their errors by paying the additional tax and they can file the new return within 2 years. तो टेक्निकल ग्लिचेस जो आ रही थी इन टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स फाइलिंग में, उन ग्लिचेस को टारगेट करते हुए फ़िलहाल के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया अपडेटेड रिटर्न तैयार किया है जिसके तहत 2 साल का टाइम दिया गया है पेयर्स को, टैक्स पेयर्स को, कि वो अपने दोबारा से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एडिशनल टैक्स पे करके विदाउट एनी पेनल्टी. अपार्ट फ्रॉम इट, जो NPS के थ्रू के अंदर जो कैलकुलेशंस होते थे, जो NPS के जो डिडक्शंस होते थे, उनको पैरिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उसमें स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैरिटी प्रोवाइड करी गई. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने फ़िलहाल के लिए टैक्स डिडक्शन की जो लिमिट थी अंडर NPS इसको इंक्रीज़ कर दिया है फ्रॉम 10% टू 14% ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पेमेंट सिस्टम पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम्स अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ पैरिटी प्रोवाइड कर दी गई है. टैक्स डिडक्शन की लिमिट्स को 10% से 14% तक बढ़ा दिया गया है. नेशनल पेमेंट स्कीम, जिसको हम न्यू पेमेंट स्कीम भी नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको हम न्यू पेंशन सिस्टम भी बोलते हैं, उसके तहत अब 14% तक का डिडक्शन हो सकता है एज पर द न्यू नॉर्म्स बाय फाइनेंस मिनिस्टर. तो 10% से 14% का डिडक्शन अलाउ कर दिया है. टैक्स डिडक्शन लिमिट डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं बढ़ा दी गई है अंडर NPS. तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कोई बेनिफिट तो नहीं दिया ATC, ATD या 24 के अंदर में, बट हाँ 10% से 14% का डिडक्शन इंक्रीज कर दिया है फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम. तो अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आर एट पार. अपार्ट फ्रॉम इट, जो डिफरेंटली एबल्ड टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने पे आउट अलाउ कर दिया है. सो एज पर द FM, the differently able dependent for whom their parents guardian have
brought an insurance policy during the lifetime of the letter, provided they have attained the age of 16. So now they can have the pay out. So differently able, so गवर्नमेंट ने फिलहाल जो differently able dependents हैं, जिनके कभी कभी पेरेंट्स या गार्जियन उनके लिए किसी तरह की इंश्योरेंस स्कीम्स खरीद देते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद देते हैं, ताकि उनके पेरेंट्स के बाद में जो डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स हैं उनको सर्टन सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मिलती रहे. सो अंटिल नाउ टैक्स डिडक्शन टू पेरेंट एंड गार्जियन वॉज परमिटेड only if the lump sum payment or annuity was paid on the subscriber's death. और जो नया चेंज आया इसके बाद, इस पे आउट को अलाउ करने के बाद, डेफिनेटली जो डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स हैं और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, दे विल एक्चुअली feel certain relief and that will give boost to their sentiments. Apart from it, LTCG पर जो सरचार्ज लगता था उसको भी कैप कर दिया. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ कैप द सरचार्ज ऑन LTCG. LTCG stands for long term capital gains payable at 15% for all the assets. So earlier this surcharge on LTCG was actually capped at 15% only for listed shares and units, but now it will be applicable to all sort of assets. So now LTCG on other capital assets could go as high as 37%. तो ये कुछ चेंजेस हैं, माइनर चेंजेस भी कह सकते हैं, बट यस गवर्नमेंट से इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. इंडिविजुअल्स भी इससे कुछ कंप्लायंस बर्डन पर उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा. ऑल दो टैक्स स्लैब्स में या डिडक्शन लिमिट्स में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं कॉमन मैन के. So this is the key benefit. Keep taxman at bay. Pay lower surcharges. NPS parity between center as the state government employee, जिनका 10% से 14% डिडक्शन कर दिया गया. अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, उनका 10% का डिडक्शन था अंडर NPS न्यू पेमेंट सिस्टम, न्यू पेंशन सिस्टम. अपार्ट फ्रॉम में जो डिफरेंटली डिसेबल इंडिविजुअल्स हैं उनके पेरेंट्स को भी कुछ रिलीफ दिया गया. एज आई डिस्कस earlier जो था, parents could enjoy the deductions on the insurance policy only if the payout was made after their death, but now payout can made even after the age of 60. और जैसा कि हमने कई बार न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस भी किया है कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो इसको लेकर ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस बार कोई वेल्थ टैक्स रिलेटेड चीज़ आएगी, कोई एक्सपेंडिचर टैक्स रिलेटेड कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी. बट फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है एंड इनइक्वालिटी इज़ इन ऑन राइज. हम देख सकते हैं दिस इज़ द शेयर ऑफ टोटल नेशनल इनकम. सो बॉटम 50% एंड टॉप 100% की किस तरह से उनकी इनकम जो है टॉप 100 टू टॉप 10 है, उनकी इनकम किस तरीके से इंक्रीज हो रही है ईयर बाय ईयर. एंड दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स अ बॉटम 50 हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया. तो किस तरह से उनका जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, उनका जो शेयर है नेशनल इनकम में, वो डिक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर. तो ये जिस तरह से गैप बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, ये गैप इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो राइज पर है. एंड दिस इज़ द एवरेज हाउस होल्ड असेट्स फॉर रूरल हाउस होल्ड्स एंड अर्बन हाउस होल्ड. तो इसके केस में भी हम डिस्पैरिटी ईजली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है एवरेज वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट्स और एवरेज वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड बाय रूरल इंडिविजुअल, रूरल हाउस होल्ड्स और अर्बन हाउस होल्ड. तो फिलहाल के लिए इस बजट में इनइक्वालिटी को कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं किया गया है. गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब से कोई छेड़छाड़ नहीं करी है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 11. टैक्स रिलीफ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड स्टार्टअप. सो डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म में इंडिविजुअल को तो कोई फ़ायदा नहीं गवर्नमेंट ने दिया है, कोई ऐसा मेजर रिलीफ नहीं दिया है. लेकिन अगर बात करी जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तो और स्टार्टअप्स की, so the finance ministry has reduced the minimum alternate
tax, that is match for cooperative society to 15%। पहले कितना था? 18.5% था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो मैट है, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, उसको 18.5% से घटा करके 15% ला दिया गया है। एंड दिस मूव विल ब्रिंग द मैट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी इन लाइन विद द कंपनीज के बराबर। कंपनीज को भी रिसेंटली 15% टैक्स लाया गया था, कोई याद होगा, 18% से रिड्यूस करके अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी उसी लेवल पर, इक्वल लेवल पर ला दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, द सर्टेन चार्जेस ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% टू 7%। तो कुछ चार्ज भी रिड्यूस किए हैं, स्पेशली ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जिनकी इनकम 1 to 10 करोड़ है। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो सर्च चार्ज लगता था पहले 12% अप्रॉक्सीमेटली लगता था, जिसको रिड्यूस करके 7% गवर्नमेंट ने कर दिया है इनटू दिस ईयर बजट। एंड डेफिनेटली ये जो रिडक्शन किया है सर्च चार्ज में और मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स में, दैट विल help the cooperative society for having more income. This will help the members of cooperative society for having more income who are mostly belongs to rural and farming community as per the government. तो basically हम ये कह सकते हैं थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट ने रूरल इकोनॉमी में पैसा पंप करने की कोशिश करी है, जिससे कि वहाँ पर इनकम जनरेशन हो, फंड अवेलेबिलिटी हो, मनी अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि रूरल इकोनॉमी जो है वो रिवाइव हो। क्योंकि इंडिया के केस में बहुत सारे सेक्टर में अगर हम देखें अर्बन सोसाइटीज़, तो वहाँ पर अब सैचुरेशन आ चुका है। सो इट्स अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट और द कंपनीज टू चैनलाइज देयर रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स द रूरल इकोनॉमी, और उसके लिए फार्मर्स की इनकम भी डबल करना ज़रूरी है, रूरल इकोनॉमी में पैसा होना भी ज़रूरी है। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू गवर्नमेंट ने रूरल इकोनॉमी को टारगेट किया है, वहाँ पर मनी सर्कुलेशन, मनी सप्लाई, इनकम डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करी है। And if we see the gross direct tax collection target for this particular year, तो गवर्नमेंट ने approximately 7.2 to 7% का टारगेट रखा था फॉर कॉरपोरेशन टैक्स एज वेल एज इनकम टैक्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ ट्रिलियन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो गवर्नमेंट ने इतना एंटिसिपेशन किया है कि इस इतना परसेंट का टैक्स कलेक्शन होगा, एंड दिस इज़ द टारगेट फॉर लास्ट couple of years, as we can see, although it is not increasing exponentially if we see the graph, but yes, this is increasing in a very slow pace. तो ईयर बाय ईयर जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जो टारगेट है उसको इंक्रीज करती जा रही है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें, रिवाइज एस्टिमेट्स देखें तो 6.3 और 6.1% का टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने फॉर कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्शन, फॉर इनकम टैक्स कलेक्शन। इस बार 7.2 और 7%, 7.2 और 7 रुपी ट्रिलियन, नॉट परसेंट, रुपी ट्रिलियन का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने थ्रू कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन और इनकम टैक्स कलेक्शन। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 ट्रिलियन ऐसा गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है कि कॉरपोरेट और इनकम टैक्स से रिस्पेक्टिवली कलेक्ट होगा। एंड दिस इज़ द टैक्स इनसाइट्स टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिंस लास्ट 10 ईयर्स, और ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, सिर्फ अगर 21 को छोड़ दिया जाए, इसके बाद से टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो अपने एक स्टेबल लेवल पर बना हुआ है। फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर this is actually 11.9%, and for financial year 23 government is anticipating it's 10.7% tax to GDP ratio, and this is the tax buoyancy that is still low as per the recent data. हालांकि 2020 में it was into the minus और the negative territory, उससे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 2021 का डेटा अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, बट 2022 और 2023 का डेटा अवेलेबल है। तो टैक्स बायंसी जो है वो अभी भी लो है। तो बहुत ज़्यादा टैक्स के केस में स्पेशली इंडिविजुअल टैक्सेशन में गवर्नमेंट ने कोई मेजर रिफॉर्म नहीं लाया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स दैट आर रिलेटेड टू बजट ओनली। FM stays on fiscal correction path, banks on
CapEx. So on the back of expanded public investment program, our finance ministry has set a fiscal deficit target of 16.6 trillion for financial year 23. That is 6.4% of nominal GDP. Nominal GDP का 6.4% टारगेट गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट का सेट किया है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. दिस कंपेयर्स विद 15.9 ट्रिलियन, दैट इज 6.9% ऑफ जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, जो कि लास्ट ईयर का टारगेट था 6.8. गवर्नमेंट 6.8 का भी टारगेट अचीव नहीं कर पाई. 6.9 एक्चुअल फिजिकल डेफिसिट रहा गवर्नमेंट का एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. तो इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट 6.4% का टारगेट सेट कर रही है फॉर अपकमिंग ईयर. द फिजिकल डेफिसिट इन 23 is estimated at 6.4% of GDP, which is inconsistent with the broad path of fiscal consolidation that was announced by our finance minister. और अपकमिंग ईयर्स जैसा कि मैंने डिस्कस किया 2026 तक गवर्नमेंट इस फिजिकल डेफिसिट को 4.5% तक का लाने का टारगेट रखी है. सो गवर्नमेंट इज ऑल कॉशियस टू द नीड टू नर्चर द ग्रोथ थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड सस्टेनेबल इकोनॉमी. गवर्नमेंट इज एक्चुअली नॉट गोइंग वेरी क्विक ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल डेफिसिट path. I hope that many of you might be knowing what is fiscal deficit. Fiscal deficit is nothing. It is just the difference between the expenditure and the revenue of the government when the former is higher. It means expenditure is higher than revenue. तो गवर्नमेंट डेफिसिट में जाती है, डेफिसिट में जाती है, इसीलिए बोरोइंग करती है. और अगर आपको याद, अभी हमने आगे डिस्कस किया है कि 11.1 ट्रिलियन का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने बोरोइंग का. क्यों रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो 6.8% का फिजिकल डेफिसिट, जो 6.4 का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रख रहे हैं, हमें पता है कि 6.4% फिजिकल डेफिसिट होगा. तो इस डेफिसिट को कहाँ से पूरा करेगी गवर्नमेंट? डेफिनेटली फ्रॉम द बोरोइंग, मार्केट से बोरो करेगी. क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ने स्मॉल सेविंग फंड्स पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है. और इसीलिए जो हमारे 10 साल का जो बॉन्ड है, 10 ईयर्स का बॉन्ड है, वो 6.8% के यील्ड रेट पर पहुंच गया है. क्योंकि बॉन्ड मार्केट को समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लाए, किसी भी तरह का कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं दिया, तो कहाँ से बॉन्ड मार्केट के पास भी पैसा आएगा इतना गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए. फिलहाल के लिए वी आर नॉट गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर राइट नाउ. अभी के लिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट फिजिकल करेक्शन के पाथ पे है, बट बहुत जल्दी गवर्नमेंट फिजिकल करेक्शन नहीं करना चाहती है, फिजिकल कंसोलिडेशन पर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अभी इकोनॉमी को सपोर्ट की ज़रूरत है, लिक्विडिटी की ज़रूरत है. इसके अलावा जो बैंक्स हैं उनमें भी उनको भी बोला गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को पुश करने के लिए वो लोन प्रोवाइड करें. तो बैंक्स को भी ये टारगेट दिया गया है कि इन ऑर्डर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बैंक शुड ऑल्सो सपोर्ट द प्लान बाई रिलैक्सिंग देयर लेंडिंग नॉर्म्स. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नॉन टैक्स रेवेन्यू टू सी 14% डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 23. हालांकि फाइनेंशियल ईयर 22 में टैक्स कलेक्शन जो रहा है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन एज पर द प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, non-tax revenue is going to see a decline of 14%. For which year? For upcoming financial year 23. तो non-tax revenues क्या होते हैं, आप मुझे comment section में लिखकर बताइए. हालांकि चलिए मैं बता देती हूँ. non-tax revenues basically dividend from the PSUs, dividend from the RBI, national banks, financial institutions, other communication services including spectrum. इनसे जो भी पैसा आता है, जो AGR ड्यूज वगैरह जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, दैट ऑल कम्स अंडर नॉन टैक्स रिवेन्यू. गवर्नमेंट के लिए ऐसे रिवेन्यू हो जो टैक्सेशन से नहीं आ रहे, टैक्स के अलावा किसी अदर सोर्स से आने वाला जो पैसा है वो उसको सीधे सीधे बोलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू. सो एज पर द रीसेंट कैलकुलेशन फॉर दिस ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23 जो आने वाला है, इसमें गवर्नमेंट का जो नॉन टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन है वो फॉल करेगा. और स्पेशली अगर हम देखें कहाँ का नॉन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा फॉल कर रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में 27% लेस रेवेन्यू कलेक्शन होगा इन स्पाइट ऑफ 5G रोल आउट, जो कि गवर्नमेंट एक्चुअली प्लान कर रही है फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 ओनली. इसके बावजूद भी जो टेलीकॉम सेक्टर है
उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो डिक्रीज करेगा अप टू 27%, एंड दिस कपल्ड विद द expected deadline in dividend from RBI would result in 14% fall in non-tax revenue at 2.7 ट्रिलियन। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसके अलावा आरबीआई का जो डिविडेंड पे आउट है उसकी वजह से भी नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉल करने के चांसेस हैं एज पर द रीसेंट डेटा। तो फिलहाल के लिए अभी गवर्नमेंट वरी नहीं, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 22 रहा है उसमें अच्छा टैक्स कलेक्शन हुआ है। यस, 23 के लिए जो अब जो कलेक्शन आया है उसमें लोअर डिविडेंड आरबीआई ने पे किया है। टेलीकॉम्स जिस तरह से एजीआर ड्यूज के मैटर से स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका कंट्रीब्यूशन भी रिड्यूस किया है 27% का तक, जिसकी वजह से इस बार नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट का फॉल करेगा। तो कैसे गवर्नमेंट मीट आउट करेगी अपने अदर एक्सपेंडिचर, दैट स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। डेफिनेटली गवर्नमेंट विल गो फॉर बोरोइंग, और इसीलिए बोरोइंग का इतना ह्यूज टारगेट, एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है फॉर दिस ईयर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, हेल्थ नो लॉन्गर द हाईलाइट। तो जैसा एंटिसिपेट किया जा रहा था, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हेल्थ केयर के केस में, हेल्थ केयर सेक्टर या हेल्थ केयर इंडस्ट्री के केस में गवर्नमेंट इस बार अच्छा खासा एलोकेशन कर सकती है, उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा अमाउंट का एलोकेशन देखने को नहीं मिला है इस बार के बजट में। केवल और केवल अगर हम देखें तो पिछले साल के बजट के कंपैरिजन में केवल और केवल 0.96% का अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर एलोकेशन इंक्रीज किया है इन केस ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रिसर्च के केस में 3.9% इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर एक्सपेंडिचर देखें तो 0.323% का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। हालांकि वैक्सीन के केस में जो एलोकेशन है वो फॉल किया है -87%, जो कि लास्ट ईयर 39,000 करोड़ था। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का एलोकेशन किया था, और इस बार केवल और केवल 5,000 करोड़ का एलोकेशन है ऑन वैक्सीनेशन। तो -87% का फॉल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन फॉर वैक्सीनेशन, जबकि कई सारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के कह चुके हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी ये कहा है कि वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर गवर्नमेंट for reviving their economy. Instead of that, government has not made any significant increase in allocation towards the health sector. लास्ट ईयर अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 22 के बजट में गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 137% ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था इन केस ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 21 एलोकेशन। बट इस बार अगर हम देखें तो केवल और केवल 0.23% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिंस लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 22। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज एलोकेशन में नहीं है। वैक्सीनेशन के केस में तो गवर्नमेंट ने एलोकेशन 87% तक रिड्यूस कर दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, सेंटर गिव्स अ फिलिप टू स्टेट फाइनेंस विद Claude Fish. So the budget has given state a reason to cheer in terms of interest-free capex loan worth rupees 1 trillion रुपीज़। तो स्टेट्स को 1 ट्रिलियन रुपीज़ देने का वादा किया है बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किस लिए? सेंटर ने कहा वी विल प्रोवाइड यू 1 ट्रिलियन इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब हम इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप सीधे लोन लीजिए और बाद में लोन चुकाए, जितना आपने लोन लिया उतना लोन दीजिए। किस लिए गवर्नमेंट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को? सिंपली टू पुश अप द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर, इसको प्रमोट करने के लिए स्टेट्स को 1 ट्रिलियन का लोन दिया जा रहा है, जिससे कि जो स्टेट्स इकोनॉमी है वो बूस्ट हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इनकम जनरेशन हो, डिमांड जनरेशन हो और इकोनॉमिक रिवाइवल देखने को मिले। सो कैपिटलाइजिंग ऑन इट्स सक्सेसफुल एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग बैक टू बैक लोन्स टू स्टेट्स इन lieu of compensation due to shortfall in GST revenue, the center provided a similar loan assistance to the state for their capital expenditure last year.
So rising it from 10,000 crores to 15,000 crore this fiscal year, center has promised that we will give you 1 trillion worth of such loans, and you can avail this loan facility just to boost certain capital expenditure projects. Apart from it, state can also use, इसके अलावा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा भी अगर स्टेट्स चाहें तो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। पीएम गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रूरल रोड्स को, डिजिटलाइजेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं स्टेट। सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के एरिया के लिए गवर्नमेंट ने ये लोन देने का प्रॉमिस किया है स्टेट्स को, जिससे कि जो स्टेट्स हैं वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट कर सकें, और गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टेट्स भी चलें। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स. I have tried to be as comprehensive as possible because I cannot cover every budget related news here. But yes, I try to include every important news so that at least you can have the glimpse of this year budget. So if you want to have lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.